السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو وہ اسے نیچے اتار دیتا ہے۔ وہ اپنی شال ٹھیک کر کے اس کے ساتھ چلتی کار تک پہنچتی ہے۔ وہ کار میں ہی سو جاتی ہے۔ اس کا سر شیان کے کندھے پر تھا۔ وہ آ کر ولا کے سامنے کار روکتا، اس کا سر سیٹ پر رکھتا ہے اور اس کی جانب آ کر دروازہ کھولتا، اسے بازوں میں اٹھائے ریموٹ سے کار لاک کرتا اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے شوز اتارتا ہے۔ وش اس کے بال کان کے پیچھے اڑسا پکارتا ہے۔ وہ ہلکا سا قسمسا کر کرتی ہے۔ چینج کر لو، وہ اس پر چھکے کہتا ہے۔ ڈریس وہ ہاتھ آگے کرتی ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرا کر کبرڈ سے نائٹ پنک کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر لا کر اسے کھڑا کرتا ہے۔ وہ نیند میں ہی چینج کر کے باہر آتی ہے۔ وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ آ کر اسے ہسار میں لیتا سو جاتا ہے۔ وہ اس کے یوں کرنے پر منہ پھلا لیتی ہے، مگر وہ ہاتھ سے اس کے گال ٹھیک کرتا سوتا بنتا ہے۔ مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی ناول ریڈ کر رہی تھی۔ اسی نے ہی آروش کو پڑھنے کا کہا تھا اور وہ مہوش کے کہنے پر ریڈ کرنے لگی تھی اور مہوش سے زیادہ پڑھ چکی تھی۔ وہ فیس بک پر ہی ریڈ کرتی تھی۔ اس وقت ایک گروپ میں آئی کسی ناول کی ایپی پڑھ رہی تھی، تبھی اس کے فون پر کسی عجیب سے نمبر سے کال آتی ہے۔ وہ یقیناً پاکستان کا نہیں تھا۔ وہ آروش کا سوچ کر ریسیو کر لیتی ہے۔ اس نے وائس میں اسے برتھ ڈے وش کیا تھا، ہیلو، مگر دوسری طرف سے خاموشی ہوتی ہے، بس سانس لینے کی آواز آئی تھی۔ اس کا دل الگ سے دھڑک اٹھتا ہے، نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں وہ شخص آتا ہے۔ ہیلو، وہ دل پر ہاتھ رکھتی دوبارہ بیٹھی ہے۔ اس نے کبھی رانگ نمبر نہیں اٹھایا تھا، آج وہ اٹھا کر بول بھی رہی تھی۔ آئی ہوپ یو فائن، غمگین آواز میں کہے لفظ اسے بہت خوشی دلاتے ہیں۔ اس کی والدہ اسے دعائیں دیتی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ کر آئی تھی۔ تھینک یو مسٹر، وہ رک جاتی ہے، وہ نام نہیں جانتی تھی۔ آہان، دوسری طرف سے وہی آواز میں بتایا گیا، اس کا نام اس کا دل دھڑکاتا ہے۔ جانتا ہوں ایک غیر سے بات نہیں کرو گی، جو ایک مرد کے لیے فخر ہوتا ہے۔ I just want to know that you are fine، وہ دھیمے سے کہتا ہے۔ دل پر قابو نہ پاتے وہ کال کر بیٹھا تھا۔ آروش کیسی ہے؟ وہ اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے۔ شی از فائن، وہ نرمی سے جواب دیتا ہے۔ وہ پاکستان آئے گی کیا؟ وہ ہچکچا کر پوچھتی ہے۔ اس کا نہیں پتا، میں آؤں گا، کچھ اہم ہے وہاں میرا جو صرف میرا ہے، یہ جان لو وہ تم ہو۔ وہ خود کو میرے لیے سوچو یا نہیں، مگر اور کسی کے لیے نہیں، بہت جلد اپنی دسترس میں لے لوں گا تمہیں۔ نہ وہ کوئی حکم تھا نہ کچھ، ایک پیارا سا اظہار تھا ان لفظوں میں۔ ایک کینسر سے ایک بیٹی کو بچانے کے لیے لگے ہیں، کیا دوسری کو دیں گے؟ سادہ سا سوال تھا۔ تبھی اس کی والدہ اندر آتی ہیں۔ اس نے ویسے انہیں ہی بتانا تھا۔ وہ فون لاؤڈ سپیکر کر دیتی ہیں۔ نہیں جانتا، آروش کی طرح تمہیں نہیں لا سکتا، مگر اگر کوئی جائے گا یہاں تو تمہیں ویسے لایا جائے گا۔ میں اور ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ انداز میں درد تھا جو چھپایا گیا تھا، مگر سامنے بھی وہ تھی جس کو وہ دل دے بیٹھا تھا۔ اس کی والدہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھتی ہیں۔ وہ انہی آنکھوں کے ذریعے خاموش رہنے کا کہتی ہے۔ آج دل پر قابو کرنے کا دل نہیں کیا، اس لیے کال کر لی آنٹی۔ ایک نامحرم سے بات کرنا صحیح نہیں، جانتا ہوں، جلد ہی اس میں محرم بنا لوں گا انشاءاللہ۔ وہ دونوں اس کی بات پر چونکتی ہیں، مگر وہ فون رکھ دیتا ہے۔ امی یہ سب اتنے اچھے ہیں، وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی ہے۔ ہاں، اس کا احسان ہے، اگر وہ تمہیں مانگ رہا ہے، اس کے انداز میں چاہتی میں منانے کی کوشش کروں گی۔ وہ اس کے گال پیار سے چھوتی نکل جاتی ہیں۔ وہ لیٹ جاتی ہے۔ ذہن میں اس شخص کی آواز بار بار آ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر نماز ادا کرنے لگتی ہے۔ ایک ہفتہ پرسکون گزرا تھا۔ آروش کی ملاقات شیان سے کم ہوتی تھی۔ وہ اس کے سونے کے بعد آتا اور اٹھنے سے پہلے چلا جاتا۔ ایک بار کبھی دن میں آتا تو وہ دیکھ لیتی تھی، مگر ان میں بات نہیں ہوئی تھی۔ ماں یہی تھی، وہ ان سے باتوں میں لگی رہتی تھی۔ میسا بھی کافی ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کرتی تھی۔ موسیٰ نے اس کی اس طرح معصوم بن کر معافی مانگی تھی۔ اسے شیان نے یہ بتایا تھا اسے کوئی اپنا جھکا ہوا اچھا نہیں لگتا، اس لیے اس نے اسے سیریس ہو کر معافی مانگی تھی، مگر وہ جانتا تھا وہ معاف کر چکی تھی۔ کیا خبر ہے؟ ایک ولا کے اندر میٹنگ روم میں سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ وجود سامنے کھڑے ملازم سے روبدار لہجے میں پوچھتا ہے۔ سر، اس نے شادی کی ہے پاکستان میں۔ وہ چونک کر اسے دیکھتا ہے۔ کیا پاگل واگل ہو گئے ہو کیا؟ بھول گئے، ایگل کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ پیپر ویٹ گھماتا اس پر برستا ہے۔ نہیں سر، یہ سچ ہے، اس نے زبردستی شادی کی، ہم اس لڑکی کو اس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، وہ زہریلے لہجے میں کہتا ہے۔ یہ بات اگر سچ ہے تو وہ لڑکی کافی کام آ سکتی ہے ہمارے۔ ہاں 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 ہاں، ایگل کو اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے میں نے۔ وہ شخص مکروہ ہنسی ہنس دیتا ہے۔ لیکن باس، اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ وہ تو ان کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے، 24 گھنٹے نہ باہر نکلتی ہے۔ کافی کوئی تو پلان بنانا ہوگا۔ دیکھو، اگر کبھی باہر نکلے اور اکیلی ہو تو اس سے بات کر لو، ایسے کہ تم اسے بچا سکتے ہو۔ بار بار یہ محسوس کروانا زبردستی لائی گئی ہے۔ لازماً وہ ساتھ دے گی، وہ کہ ہر جگہ اپنی سے کھڑا، وہ کہہ کر
वो कहकर अपनी जगह से खड़ा होता है। बॉस, मगर ईगल को कैसे मारेंगे? वो शख्स आखिर सवाल कर ही लेता है। क्या वो उसके कहर से नावाकिफ था जो ये कदम उठा रहा था? उसकी इज्जत पर हाथ डालना, शेर के मुंह से उसे निकालना क्या आसान था? बस देखते जाओ, वो सफाकित से कहता बाहर निकल जाता है। अरूश फजर की नमाज पढ़कर लेट जाती है। शान पास ही सो रहा था। अलार्म की आवाज पर उसे बंद करता उठ बैठता है। तुम कहीं जा रहे हो? वो जानती थी उसे सवाल पसंद नहीं है, मगर इस वक्त ज्यादा देर वो पूछ बैठती है। वो कहता वॉशरूम में घुस जाता है। वो चेंज करके बाहर आता है। शूज चेंज करके उसके सराहने बैठता है जो उसकी कार्रवाई देख रही थी। चलो उठो। वो कंफर्टर पकड़ता उसे कहता है क्यों? वो कंफर्टर खींचती है। विश। वो उसके पुकारने पर मुंह बसोर कर बगैर कंफर्टर के लेट जाती है। विश, चलो एक्सरसाइज के लिए। उसे बाजू से पकड़कर बिठाता कहता है मैं तुम्हारी तरह मोटी नहीं हूँ, जाओ खुद करो। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती उसे मोटा कह बैठी है। वो आईब्रो उचका देता है। बस कहता है इतना कि 2 मिनट में उठो। नहीं उठ रही। वो भी ठीक बनकर बैठी कहती है। वो खड़ा होकर अगले ही सेकंड उसे उठाता है, चेंजिंग रूम में लाकर छोड़ता है। 2 मिनट से पहले ओके। वो कहता है, दरवाजा बंद करता, बाहर निकल जाता है। वो मुंह बसोर कर उठती, चेंज करने के लिए कपड़े उठाती है। वो जानकर 10 मिनट बाद निकलती है। वो वॉच पर टाइम देखकर उसे देखता है। वो इग्नोर करती, बाल सही करती है। उसका पाँव कदर बेहतर था। हाथ का घाव भी बस दरमियान वाला सही होना था। शान को तो अपने हाथ से पट्टी उतार कर फेंक चुका था। वो पोनी उठाती है मगर वो बांध नहीं सकती थी, इसलिए मैसी सा जूड़ा बना लेती है। कहाँ तक जाना है? वो मिरर से उसे देखती पूछती है। वो नफी में सर हिलाता, उसका दुपट्टा उठाकर सर पर डालता हुआ हाथ पकड़े पाए लाता है। एक्सरसाइज एरिया वहीं था, उसी विला में, बल्कि निहायत ही शानदार था। हर मशीन वहां मौजूद थी। उन्हें यहाँ आए आधा घंटा हो गया था। उसे बार बार नींद आ रही थी। वो स्टॉप करके जमाई रोकती शान के पास आती है, जो हाफ टी शर्ट और ट्राउजर में बलबूस पुशअप करने में मगन था। उसके कसरती बाजू हाफ टी शर्ट होने से झलक रहे थे। उसके पास आकर खड़ी होती है। मैं जाऊं? मासूमाना अंदाज था। नहीं। वो सीधा होकर उसे देखता है। क्यों? वो रोनी शक्ल बनाती है। बेचारी को नींद भी तो पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, रूम से जल्दी से रेडी होकर आओ। वो हुक्म जारी करता खड़ा हो जाता है। वो पैर पटकती उसे कुश्ती बाहर निकलती है। उसकी नजरें उसके बाहर जाते तक पीछा करती हैं। वो लिविंग एरिया से गुजरती सीढ़ियां चढ़कर कमरे में बंद हो जाती है। शान वहीं वॉशरूम में घुसकर वार्डरोब से सूट निकालता, चेंज करने के लिए अंदर घुसता है। वो लॉन्ग फ्रॉक साथ ट्राउजर पहने, सर पर दुपट्टा किए बाहर निकलती है। पाँव में सॉफ्ट से पिंक कलर के शूज थे। उसकी चोट की वजह से उसके रूम में वही शूज रखे गए थे। उसे वो पहनकर बहुत मजा आता था। वो नीचे आकर किचन की तरफ रुख करती है। उसके अंदाजे के मुताबिक वो वहीं था किचन में। वो जल्दी जल्दी माहिर अंदाज में हाथ चलाता काम कर रहा था। वो जाकर उसके साथ ही शेल्फ पर बैठ जाती है। उसे बार बार नींद आ रही थी। वो एक नजर से देखकर दोबारा काम में मगन हो जाता है। वो इतनी जल्दी क्यों उनमें घुल-मिल सी गई थी? क्या सब ठीक हो गया था या किसी नए तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? उसे क्यों लगता था उसे यहाँ से जाना है? वो उसे देख तो रही थी मगर सोचे कहीं और भटक रही थी। तुम्हारी सोचे कहाँ है? वो उसके पास से बैग उठाता उसे सर नजरों से देखकर कहता है, क्या कंपल्सरी है तुम्हारा मुझे यूं देखना? वो उसकी सर नजरों से तंग थी। उसे बार बार देखने पर यूं उलझन सी होती थी। उसका नर्म अंदाज बहुत खूबसूरत था मगर वो कभी कभी उसे छूकर गुजर जाता था। तुम्हें मुझे यूं ही एक्सेप्ट करना है, वो इसे खाली नजरों से देखकर कहता है। लहजे में एहसास ढूंढने से भी नहीं था जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। आई हेट यू। वो उसके बाजू पर मुक्का मारती है। तुम्हारी नफरत का इजहार मेरे बर्थडे जुनून को नहीं रोक सकता। लफ्जों को सोच कर अदा किया जाता है। गलत जगह गलत लफ्ज बोलने से बाद में पछतावा रहता है। तुम्हें सुनना पसंद है मुझे, मगर एक हद है उसकी। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे नीचे खड़ा करता, गिरफ्त मजबूत से मजबूत तक कर देता है, जिससे दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ती है। यू आर हर्टिंग मी। वो दांतों का आपस में टोपस करती कहती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दर्द ही है। एक लम्हा वो आंखें बदली थी, मगर बस एक लम्हा। वो दोबारा वैसे ही सर्द हो गई थी। शान छोड़ो। वो उसे पीछे धक्का देती है। वो गिरफ्त हल्की कर चुका था, जिससे वो 2 कदम पीछे हो जाता है। वो लफ्ज अदा मत किया करो, क्योंकि क्यों चाहती हो खुद को अजियत देना? वो एक लम्हा में फासला तय करता, उसको गर्दन से पकड़कर दीवार से लगा देता है। छोड़ो। वो उसका हाथ चटकने की कोशिश करती है मगर उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस होती हैं। लीव। उसके दिल के मकाम पर हाथ रख देती है, जिससे अगले ही पल उसकी गिरफ्त हल्की पड़ जाती है, मगर वो छोड़ता नहीं है। आई हेट यू। वो खांस कर कहती दूसरी साइड खड़ी हो जाती है। तुम मेरे जुनून को आखिरी हद तक पहुंचा रही हो। इश्क का नाम है जुनून, बस इनमें इतना फर्क ही है कि आशिक अपने महबूब के पीछे कुछ भी कर छोड़ सकता है उसकी खुशी के लिए, उसे भी, मगर जुनून एक पागलपन है। आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। उसकी आखिरी हद में अगर वो जुनून ना मिलेगी तो या तो आप खुद को मार देते हो या उसे, मगर जुनून खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, हर हद पार कर देता है। और तुम मेरे जुनून की हर हद हो। विश तुम्हें रहना है यहीं या जहां मैं चाहूंगा। तुम्हें दर्द देने का, खुशी देने का हर हक मुझे है। तुम्हारी जात
صرف مجھ سے مجھ تک ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیٹ پر باندھتا ہے، ایک ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بات کرتا ہے۔ وہ ایک لفظ نہیں بولتی، کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے سنا تھا انسان دھوپ چھاؤں جیسے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ مجھے زبردستی رکھا ہوا تم نے، جب راہ فرات دی کہ تمہاری قید کو ٹھکرا کر چلی جاؤں گی۔ وہ کھیل رہا تھا تو سامنے بھی کھلاڑی ٹکر کا تھا، اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تمہیں کہا تھا تمہاری کوئی واپسی نہیں۔ وہ اس کا منہ دبوچ لیتا ہے ہوگی میری واپسی، ان دردوں میں رہ کر کیا کروں گی، چاہے اس درد کو الٹ کرو یا سیدھا، وہ درد ہی ہے۔ تمہارے وجود بار بار درد دیتا ہے۔ تم سے محبت بھی کی جائے تو وہ بھی صرف درد ہے، درد سے اپنا دامن بھرے گی۔ اس کے وہی ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو، جل جاؤ گی۔ سخت ترین لہجے میں کہے گئے وہ لفظ، مجھے ڈر نہیں لگتا، آگ سے جل کر مرنا بہتر ہے تمہارے ان رویوں سے مر مر کے جینے سے۔ وہ دونوں ہاتھ اسے سے پیچھے دھکیلتی ہے۔ تم ایگل سے ناواقف ہو، موت بھی ایگل کے ہاتھوں دی گئی موت سے خوف کھاتی ہے۔ کیوں اس سے واقف ہونا چاہتی ہو؟ لہجے میں چھپی دھمکی پر وہ سر جھٹک کر ہنس دیتی ہے، خالی بے جان سی ہنسی، وہ زندگی سے بھرپور کہکا لگانے والی بے جان سی ہنسی اور سناٹے اپنے وجود میں سمیٹنا شروع کر چکی تھی۔ ابھی ابتدا تھی، درد جنون سے ابتدا کر دو واقف، واپسی لازمی ہے، مجھ پر تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی ہے اور شان کا غصہ بھی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے۔ ماتھے کی لکیریں صاف واضح ہو جاتی ہیں، دانت آپس میں ایسے پرپس کیے گئے تھے کہ کبھی وہاں سے کچھ ادا ہی نہ ہو۔ گردن کی نسیں ابھر کر نظر آ رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھی بن گئی تھی۔ وہ اپنے آپ پر کس قدر کنٹرول کر رہا تھا وہ جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں ٹیس اٹھ رہی تھی، تم مجھے رکھ کر کیا کرو گے؟ کیا کوئی فلم ہے؟ کچھ لمحوں میں محبت کے دیے جل اٹھیں گے۔ مجھے واپس جانا ہے، مجھے لینے نہ آیا تو کوئی بھیج دے گا۔ اس کا لہجہ بھی خالی سا تھا۔ وہ پیچھے سے اپنے پینٹ سے پسٹل نکالتا اس کے سر پر تان دیتا ہے۔ وہ اب شرف سے لگی ہوئی تھی، نظروں میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی کھڑی تھی، سامنے وہ غصے کی انتہا پر تھا تو اس لڑکی کا اعتماد قابل دید تھا۔ تمہیں موت دے دوں گا اپنے ہاتھوں سے، مگر کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ گن لوڈ کر کے دوبارہ سر پر رکھ دیتا ہے۔ تم چلا دو، کیونکہ میں زندہ رہوں گی تو یہی لفظ ادا کرتی رہوں گی، مجھے چھوڑ دو، میری ذات سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ وہ اسے گن کو اوپر سے پکڑ کر لیتی ہے، اب اسے ہٹا بھی نہیں سکتا تھا۔ شان، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹاؤ گن۔ جبران جو آواز سن کر اس طرف آیا تھا اس تک پہنچا، اسے پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ ایک ہی بار میں اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اسے واپس جانا ہے، سب جانتے ہوئے یہ میرے جنون سے دور جانا چاہتی ہے، مگر میرا جنون ان سے کہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسے وہ روپ دکھاؤں گا کہ یہ لفظ تک پوچھ جائے گی۔ وہ بے انتہا صفاقیت سے بول رہا تھا۔ جبران احان اور موسیٰ کو آواز دے کر اس کی طرف بڑھتا ہے، تم دونوں پاگل ہو، ایک غصہ ہے تو دوسرے کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ آروش پلیز بس کرو، جانتی ہو وہ تمہیں مار سکتا ہے، خود سے دور جانے نہیں دے سکتا۔ وہ اسے پکڑتا نہیں ہے کیونکہ گن لوڈ ہو سکتی تھی۔ موسیٰ اور احان دوڑ کر اندر آتے ہیں، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ سب دیکھ وہیں رک جاتے ہیں۔ نہیں کیا میرے اپنوں کی کوئی ویلیو ہے کیا؟ میری ذات کی کوئی ویلیو نہیں، میں ایک کٹ پتلی ہوں جس کو جب چاہے یہ شخص کروائے، جب چاہے آسمان کی اڑان سے واقف کروا دے، جب چاہے زمین پر پٹک دے۔ کبھی اس قدر محبت کے انسان خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص سمجھے، مگر دوسری طرف یہ روح جس سے انسان کو خود سے زیادہ بد نصیب کوئی نہ لگے، وہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات سے واقف کروائے گا۔ اس سے پوچھو رہتا کیا ہے مجھ پر؟ گن تان کر وہ بھرم بھی توڑ رہا ہے جو ان دنوں اس پر ہوا تھا، مگر پاگل ہوں، بھول بیٹھی ہوں۔ بھرم تو رون دینے کے لیے بنے ہیں، وہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہیں۔ آئی نو کبھی غلطی کی ہے تو آپ سب میرے خلاف ہو گئے، چاہے آپ سب سے جتنی ہی محبت میں کر لوں۔ اس کے لہجے کا درد ان سب کو تکلیف دیتا ہے، مگر تھے تو جلاد، خود کو کمپوز کرنا آتا تھا۔ تمہارے اپنے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا تمہارے سامنے، تب جی بھر کر سکون مل جائے گا۔ انف۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ دیتی ہے، اس صفاقیت کی کوئی حد نہیں جانتی ہوں، مگر کچھ تو رحم کرو، میرے اپنے ہیں وہ، میں جڑی ہوں ان سے، ان کا درد میرا درد ہے۔ گلے میں گرٹی ابھر جاتی ہے، وہ آگے بول نہیں پاتے، کچھ آنسو بے مول ہو کر گر جاتے ہیں۔ میں ان سب کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دوں گا اگر اب جانے کا کہا۔ شٹ اپ۔ وہ چیخ کر اسے دھکا دیتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ کیوں برا لگا، میں یہ کر سکتا ہوں، ایک پل کو ہاتھ نہیں کانپے گا میرا۔ صفاقیت سے ادا کیے کہ جملے کس قدر سامنے کھڑی لڑکی کو درد سے نچوڑ رہے تھے وہ وہی جانتی تھی۔ وہ واقف تھا مگر انجان بن رہا تھا۔ جانتی ہوں نہیں کانپے گا ہاتھ تمہارا، تب بھی نہیں جب مجھے بھی مرتے دیکھو گے۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بھرم ٹوٹ رہا تھا، آنسو میں روانی آ گئی تھی۔ انف آروش، وہ غصے میں ہے، تم خاموش ہو جاؤ، میں درد میں ہوں۔ اس کا چیخ کر کہا گیا جملہ موسیٰ کو خاموش کرا دیتا ہے۔ کون سا درد؟ ایسا کیا ہے ان میں ہاں جو مری جا رہی ہو؟ ان کے پاس جانے کو
खाली सा लहजा था सामने खड़े शख्स का। मुझे भेज दो वापस, वरना तुम सब यूं ही तंग होकर रह जाओगे। मुझे जाना है वापस, जहां माँ बाबा हैं, उनके सीने में यही गोलियां। अभी वो बोलता आरुष का पड़ने वाला थप्पड़ उसे खामोश करा देता है। बस करो, बस। माँ बाप हैं वो मेरी जात से बढ़कर हैं वो मुझे। गिर चुके हो तुम मेरी नजरों में, सच में। वो एहसास जो तुम्हारे लिए था वो खत्म हो चुका है। रोन दिया है तुमने उसे, झिझोर देती है। मगर हैरान था उसकी हरकत पर, वहां खड़ा हर शख्स। आरुष, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तुम दूर जाओगी तो मर कर। वो यही लफ्ज अदा करता है जब वो चीख कर कहती है, कहूंगी और जाऊंगी वापस, ना पीठ पीछे वार करके, ना छुप कर आंखों में आंखें डाल कर। नहीं रोक पाओगे तुम मुझे। वो ये नहज जानती थी कि इस वक्त उसकी किस्मत में लिख दिया था, मगर बहुत कुछ उसे जुदा होने था। ये क्या जुदा हो जाना था, क्या जाना था उसे। वो वक्त की चाल से बेखबर थी। वो शान के गुस्से का पैमाना लबरेज हो चुका था। तभी फायर की आवाज उससे खामोशी में गूंजती है। हर कोई अपनी जगह साकत था। वो उस गन को देख रहा था जहां से गोली चल चुकी थी, मगर लगी पीछे शीशे पर थी। मगर कुछ उसका भी टूटा था। वो भरम या एहसास उस शख्स से मंसूब, वो भी इस कांच की तरह किरची हुआ था। जिब्रान ने उसके हाथ से गन खींच ली थी। मूसा और रहान अपनी जगह साकत थे। वैसे ही अंदर आती मैसा की नजरें आरुष पर थी। वो भी तो लड़की थी, मोहब्बत पहचान गई थी, मगर उसकी नजरों में क्या कुछ नहीं था। शान की नजरें आरुष के चेहरे पर टिक गई थी। आरुष की नजर नीचे फर्श पर। वो दोनों अपने अंदर खुद से जंग लड़ रहे थे। आरुष मैसा आगे बढ़ती है, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोकती, बाहर की तरफ भाग जाती है। आज उन जलादों में हिम्मत नहीं थी उस लड़की के सामने जाने की। शान की नजरों के सामने वो बेयकीन नजरें हट नहीं रही थी। जब उसने उसे देखा था, उसे उसका टूटा वजूद नजर आया था उसकी आंखों में। क्या उसका भरम था उस पर गोली नहीं चलाएगा, या मान। वो जिब्रान से गन खींचता, लंबे लंबे टक भरता बाहर निकल जाता है। वो भागकर अपने कमरे में आई थी। वो वहीं दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। दुपट्टा नीचे फर्श पर पड़ा था, बाल पूरे खुलकर आगे आए हुए थे। उसकी सिसकियों की आवाज ऊंची थी, मगर बाहर तो नहीं जा सकती थी। वो कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वो आवाज बंद किए रो रही थी। मगर मैसा जो उसके पीछे आई थी वो जानती थी वो रो रही थी। वो डोर नॉक करती है, मगर आरुष कोई जवाब नहीं देती। आरुष, प्लीज ओपन द डोर। वो दोबारा नॉक करती है, लीव मी अलोन, मगर आवाज उसका साथ नहीं दे रही। तभी उसे बाहर से आवाज आना बंद हो जाती है। वो खिड़की खुले होने के लिए कार के स्टार्ट होने की आवाज आती है। वो भागकर उसे खिड़की में जाती है। वो चारों कहीं जा रहे थे। अब वो जानती थी घर में सिर्फ माँ होंगी। वो दरवाजा खुलती, बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती, माँ के कमरे का डोर नॉक करती है। वो शायद दवाई लेकर सो रही थी, जिससे उन्हें आज के हुए वाकये का इल्म नहीं था। अंदर से इजाजत मिलते वो अंदर दाखिल होती है। अरे आरुष, आ जाओ। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए किसी किताब का मुतालिया करने में मसरूफ थे। उसे देखकर अपने पास आने का कहती है। उनके पास जाकर उनके कंधे पर सर रखती आंखें बंद कर लेती है। क्या हुआ, क्या उसने फिर कुछ किया? वो उसके बालों में उंगलियां चलाती पूछती है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, आपके कहने पर इतना नॉर्मल बिहेव किया। उसके आंसू उनका कंधा गीला कर देते हैं। वो कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे, लहजे में नफरत नहीं था, दर्द था। कि कहते तो तुम सब जानती हो ना, उसका अपना कोई नहीं है, यही है सब, और तुम में उसकी जान बसती है। ऐसे मत कहो, उसकी जान ले रहा था वो, इसी की जान ले रहा था वो। वोट कर उन्हें देखकर कहती है, मैं क्या करूं बेटा, क्यों जाने की बात करती हो बार बार। उसने तुम्हारे लिए मुझे यहाँ बुलाया कि कभी जिद ना करो। एक लम्हा के लिए भी वो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मेरे पास, मेरे घर आने की वो इनकार नहीं कर पाता। वो उसका हाथ थाम कर कहती हैं, मैं क्या करूं, उसका रवैया जब बदलता है मुझे दर्द होता है, और तुम इस दर्द में उसे दर्द देती हो। मैंने क्या दर्द दिया ना, उसके वजूद को अधूरा छोड़कर, जाने का कहकर। वो साकत हुई थी उनके इस जुमले पर। क्या मतलब? वो सवाल करती है। तुम बीवी हो उसकी, उसके वजूद का हिस्सा हो। उसे छोड़कर जाओगी तो उसे अधूरा कर दोगे। ये जो उसके मुस्कुराता हमने देखा है, वो पहले से ज्यादा बेरहम हो जाएगा। उनके लहजे में कुछ था, बोला जवाब हो जाती है। उसने गन तानी मुझ पर। वो आंखें बंद करके बोल रही थी, जैसे वो लम्हा रुक सा गया था। फिर वो उसे बोलने को उकसाती है। उसने गोली भी चला दी। वो उन्हें देखकर कहती है, उसका हाथ क्यों नहीं कांपा? अगर मैं उसका वजूद हूं तो। अब उसने लाजवाब किया था। तुम आराम करो बेटा, सो जाओ यहीं। वो उसे जगह देती कहती है। वो वहीं लेटकर आंखें मूंद लेती है। पाकिस्तान, अब वो जल्दी करे, हमें निकलना है। आरुष का भाई हाथ में बैग लिए अपने माँ बाप के कमरे में आता है। हाँ बेटा, हो गया। वो बैग की जिप बंद करते, जरूरी चीजें उठाते हुए कहते हैं। वो दोनों आज की फ्लाइट से निकल रहे थे। वो बाहर आकर अपनी वालदा से मिलता, अपने वाले से भी बैग लेता बाहर निकलता है। वो पीछे अपनी बेगम को ख्याल रखने का कहकर निकल जाते हैं। वो उनके पीछे आए थे। भूनकर आंसू पोंछती सोफे पर बैठ जाती हैं। ओमान, अगली सुबह सब वापस आए थे। आरुष खुद को अच्छे से कंपोज कर चुकी थी। वो इस वक्त सब खाने बैठे थे। आरुष खाने की प्लेट में बस फोक चला रही थी जब उसका फोन रिंग करता है। पहले वो इग्नोर करती है, मगर कॉल करने वाला जिद्दी था। वो जेब से निकालकर अपनी अम्मी का नंबर देखती, कॉल उठाकर पूल एरिया जाती है। उसका रास्ता वहीं से था।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उड़ते बालों को कान के पीछे करती पहले सलाम कर दिया। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ, सब खैरियत। वो बेंच पर बैठ जाती है। हाँ बेटा, बस याद आ रही थी, सोचा फोन कर दूं। वो जो बताना चाहती थी खामोश हो जाती है। क्या आपने कुछ कहना था? वो अपनी माँ का बात बदलना ना समझे, ये कैसे हो सकता था? नहीं बेटा, चलो मुझे काम है, मैं तुम अपना ख्याल रखना। उन्हें उनके शौहर ने कहा था उसे ना बताएं कि वो आ रहे हैं, इसलिए वो खामोशी इख्तियार करती, कॉल बंद कर देती हैं। वो फोन हैरानी से देखती, जेब में रखकर वहीं बैठ जाती है। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और अब भी भूख नहीं थी। मैसा जो उसके पीछे आई थी उसके साथ ही बैठ जाती है। अब वो दोनों बेंच पर पीछे टेक लगाए बैठी थी। वो ठीक है? आरुष सामने देखती पूछती है। वो झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए जवाब में बस यही कहती है। क्या हुआ है उसे? वो उसकी तरफ मुड़ जाती है। कुछ नहीं, वो बोलकर खामोश होती है। मत बताओ, उठकर अंदर चली जाती है। बेटा खाना खा लो। उसे वहां से जाता देख माँ रोकती है। माँ दिल नहीं है, वो कहकर रुकती नहीं हुई निकल जाती है। वो कमरे में बैठी नमाज अदा कर रही थी जब खिड़की के जरिए कोई अंदर दाखिल होता है। उसका दूसरा रुख दूसरी तरफ था। वो उठकर जाए नमाज तय करती मुड़ती है, मगर वहां किसी को देखकर फौरन चेहरा ढांप लेती है। कौन हो तुम? लहजे में कोई डर वाजिया नहीं होने दिया था। तो तुम हो? वो जबरदस्ती लाई की लड़की। सामने खड़ा शख्स उसे ऊपर से नीचे तक देखता बोलता है। हद में रहो, कौन हो तुम? वो सर्द लहजे में। ऑफर है तुम्हारे लिए। वो काम की बात पर आता है। अपनी ऑफर अपनी जेब में रखो, निकलो। देखो जानता हूँ कैसे लाया गया है तुम्हें। ये फोन रखो, अगर वापसी चाहती हो तो इससे कॉल कर लेना, इसमें सिर्फ एक नंबर है मेरा। होशियारी करने की हिम्मत मत करना, नजर होगी तुम पर मेरी। क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? उसने उसे कोई भी फोन नहीं लिया था। वो पीछे होकर टेबल पर रख देता है। अपना हमदर्द मत समझो। वो ये कहकर जैसे आया था वैसे निकल जाता है। वो हैरानी से उसे जगह को देखती है। वो टेबल की तरफ बढ़कर फोन उठाती, नीचे की तरफ रुख करती है। नीचे कोई भी नहीं था। वो आगे बढ़ती है। जब लैंडलाइन बज उठता है वो पहले इग्नोर करती है, मगर फिर मेट को आवाज देती है। यस मैम। वो फौरन से आकर पूछती है कॉल रिसीव कर लो। वो नरमी से उसे कहती है। वो यस मैम कहती फोन कान से लगाती है, मगर अगले ही लम्हे वो फोन उसकी तरफ बढ़ाती है। वो आंखों के जरिए कौन है पूछती है, मगर वो सर झुका देती है। वो नफी में सर हिलाती उसे फोन लेती है। वो सर झुकाकर चली जाती है और उस फोन कान से लगाती है। मूसा और अहान बाहर आए। वो जहां मूसा और अहान बाहर आ रहे हैं। वो जहां लाए आ जाना। दूसरी तरफ से शान कहकर फोन रख देता है। वो गुस्से से फोन को देखकर पटक कर रखती है। शॉल मेट से कहकर मंगवाती बाहर निकलती है। जहां वो सामने कार में उसका वेट कर रहे थे। वो बैक डोर ओपन करती बैठ जाती है। वो उसके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। आरुष मैं कुछ सोच रहा था। मूसा की शरारत भरी आवाज सुनकर उसे देखती है। एक सेकंड, आपने कहा आप सोच रहे थे, मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ? वो ड्रामाई अंदाज में कहती है। जिन्नी कहेंगी, बात तो सुनो मेरी। अहान तभी मुड़कर कहता है। नहीं मैं नहीं सुनती। वो भी मुस्कुराकर उसे आज हिसाब लेती है। यार मेरी शादी करवा दो। उसकी बात पर वो दोनों ठटक कर उसे देखते हैं। अल्लाह की मानो, अभी एक्सीडेंट हो जाता। वो पानी की बोतल अपने पास पड़ी उठाकर उसे मारती है। आई हड्डी टूट गई मेरी। वो बाजू से हिलाता कहता है। तभी अहान कार रोकता है। वो एक विला था, निहायत शानदार। वो शॉल संभालती बाहर निकलती है। वो तीनों अंदर दाखिल होते हैं। सामने ही मैसा खड़ी थी। उनके आते ही उनके साथ लिए लेफ्ट साइड से होकर बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते एक दरवाजा खोलती अंदर बढ़ जाती है। वो तीनों भी उसके पीछे थे। आरुष वहीं रुक जाती है। वो सामने ही बैठे उसे देख रहा था। वो नजरें हटा देती है। जिब्रान भी वहीं मौजूद था। मैसा जिब्रान के साथ वाली चेयर पर बैठ जाती है। अहान और मूसा भी अपनी जगह बैठ जाते हैं। वो जेब से फोन निकालती शान के पास जाकर उसके सामने रखती है। वो पहुंचे और चौंक कर उसे देखते हैं। शान ने वो सब कैमरे के जरिए जिब्रान के साथ देख लिया था। वो इस बारे में जानते थे, मगर उन्हें नहीं लगा था वो कॉल करेगी, उन्हें हाँ कर देगी उन सब से दूर जाने के लिए। तभी उसका अपना फोन रंग करता है। इसके बारे में आप जानते होंगे, आई होप। वो कहकर मेसा के साथ बैठ जाती है। फोन साइलेंट पर लगा चुकी थी। हमें लगा था मूसा बोलने लगता है जब वो उसकी बात काटती है। सीरियसली मूसा? मुझे कितनी बार अपनी बातें दोहरानी होंगी। उसका लहजा सच था। नहीं आरुष, तुम्हें चांस मिल रहा था। वो सर झुकाकर कहता। हाँ था ना, मुझे वो यूज करके तुम सब तक पहुंचना चाहते थे, राइट? उसकी बात पर शांत सर नीचे करके मुस्कुराहट रोकता है। तुम कोई ज्यादा चालाक नहीं हो? ये जिब्रान था जो उसे दाद देना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी गरूर नहीं किया। वो ना पर उंगली को एक अदा से छूकर कहती है। वो सब उसकी बात पर हंस देते हैं। शान मगर खामोश रहता है। तो तुम एक काम भी कर दो, चालाक लड़की। मूसा वो फोन एक उंगली से उसकी तरफ खिसकाता कहता है। तुम्हारा कोई काम ना करूं मैं? जो कार मैं कहा वो तो हरगिज नहीं। वो भी उसकी तरह वो फोन उसकी तरफ खिसकाकर कहती है। आरुष कॉल करो। जिब्रान सीरियस होकर कहता है। लाइंस। वो फोन उठाकर उसे देखकर पूछती है। उसे कहो तुम राजी हो। वो कॉल मिला देती है। जब 5वीं बेल पर उठा ली जाती है। सो मिसेज ईगल, क्या सोचा आपने? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज आती है। क्या मुझे वापस भेज दोगे सही सलामत? वो जिब्रान को देखकर कहती है। बिल्कुल, बस एक काम करना होगा। कैसा काम? वो आंखें छोटी करती पूछती है। ईगल की मौत। उससे फोन छूट कर गिर जाता है। जिब्रान उसे रिलैक्स रहने का कहता है। वो फोन पकड़ चुका था। क्या बकवास कर रहे हो? मैं ये कैसे
ना चाहते हुए उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी, जिस पर शान को उसकी गोद में पड़ा हाथ थाम लेता है। आवाज़ नीची रखो, तुमने वापस जाना है जो तुम्हें ज़बरदस्ती लाया है उससे जान छुड़ाकर। क्या अब तक उसे इतना भी नहीं जाने कि वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा? उसकी मौत तुम्हारी आज़ादी है। वो अपनी गिरफ्त सख्त कर देती है शान के हाथ पर। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें करना होगा। उम्मीद रखता हूँ अगली बार फ़ोन करूंगा तो तुम मानी हुई होगी। वो ये कहकर फ़ोन रख देता है। उम्मीद नहीं थी बादशाह इतना कच्चा खिलाड़ी निकलेगा। मूसा हाथों की मुट्ठी बनाता दांत पीस कर कहता है। आरुष बाहर निकल जाती है। शान भी खड़ा होकर उसके पीछे निकल जाता है। वो जैसे बाहर निकलती है उसका फोन दोबारा रिंग करता है। वो फोन को जल्दी से उठाकर कान से लगाती है। वो आगे बढ़ना रुक चुकी थी। हेलो हेलो आरुष, दूसरी तरफ उसका भाई था। भाई ये किसका नंबर है? एक सेकंड, क्या आप लोग यहाँ हैं? वो नंबर को देखकर पूछती है। हाँ हम लोग कल ही आए हैं आरुष। उसके भाई शायद कहीं बाहर मौजूद था। जो शोर की आवाज़ से उसके बैकग्राउंड से सुनाई दे रही थी। मगर क्यों, आप लोग क्यों आए? वो परेशानी से आवाज़ नीचे रखे सबसे पूछती है। आरुष क्या तुम्हें ऐसे लोगों में अकेला छोड़ देते? किसके साथ आए हैं आप? बाबा और मैं पुलिस पहले ही यहाँ की पुलिस से राब्ता करके कुछ ऑफिसर को भेज चुकी थी, मगर देख लो अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आना ही था। कब तक तुम्हें इन हालात में अकेला छोड़ देते? वो ऊंची आवाज में कहता है। तभी कोई बेदर्दी से उसके हाथ से फोन छीन लेता है। तुम लोगों ने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। ईगल उसके भाई को ये कहकर फोन बंद करता अपनी जेब में डाल लेता है। उसका लहजा और रवैया दोनों निहायत सख्त थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की? तुम समझते क्या हो खुद को? वो उसके पीछे धक्का देकर चीख कर कहती है। शट अप, अपने होश में रहो। वो उसका हाथ पकड़कर दीवार से लगा देता है। मेरा फोन वापस करो। किसको कॉल करोगे? कुछ वक्त में उन लोगों का काम तमाम हो चुका होगा। आन जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। वो कानों पर हाथ रखती चिंकती है। वो पीछे से गन निकालकर वहां से निकल जाता है। आन तुम कहाँ जा रहे हो? शान प्लीज स्टॉप। शान तुम कुछ नहीं करोगे उनके साथ? शान। वो उसके पीछे चलती बार बार आवाजें दे रही थी, मगर वो बगैर सुने गन लोड कर चुका था। वो कान में लगे आले से किसी से बात भी कर रहा था। वो सारे उसके आवाजें सुनकर बाहर निकल आते हैं। आरुष क्या हुआ? मूसा उसके पास आता पूछता है। वो रुक चुकी थी। वो बगैर मूसा को जवाब दिए उसकी जैकेट के अंदर से नजर आती गन निकाल लेती है। ये इतना जल्दी हुआ? ना मूसा को समझ आई थी ना उसे। वो अब बाहर निकलकर कार का दरवाजा खोल रहा था। उससे कुछ फासले पर खड़ी अपने सर पर गन रख चुकी थी। तुम्हें मुझे मरते देखना होगा उन्हें मारने से पहले। वो बैठते वक्त रुक जाता है मगर मुड़ता नहीं। आरुष गन लोड है, छोड़ो इसे। मूसा आगे आने लगता है मगर आरुष उसे हाथ से मना कर देती है। वो सारे वहीं खड़े उन्हें देख रहे थे। गन का सुनकर वो पीछे मुड़ता है। जहां वो लोड गन अपनी गन पट्टी पर रखकर खड़ी थी वो उसके करीब आने लगता है। जब वो 2 कदम पीछे हो जाती है वो वहीं रुक जाता है। तुम मुझे भी मार दोगे उनके साथ? वो एक और कदम पीछे लेती है। गन हटाओ, वो दृष्टि से कहता है मगर वो सर नफी में हिला देती है। वो अपने अंदर उठते इस्तेशाल को दबाने के लिए सर थाम लेता है। चलाओ गोली। वो अपने हाथ में पकड़ी गन कनपट्टी पर रखते कहता है। वो एक कदम उसके करीब आती है। मेरी जिद को जानते हो तो मुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है। वो एक और कदम लेती है। चलाओ, तुम्हारे बाद मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सांस चलाओ। वो अब चीख कर उसे कहता है। जब वो 2 कदम उसके करीब आ जाती है वो उसके करीब आने पर खुद को भी 1 कदम उसके करीब आता है। तभी उनका ध्यान शान के जेब में बजते फोन पर जाता है। शान ये मेरा फोन है, प्लीज दो। वो दूसरा हाथ सामने करती उम्मीद से कहती है तुम गोली चलाओ। वो उसके बाद इग्नोर करता दोबारा कहता है आई हेट यू। ये कहते उसकी आंख से एक आंसू बह निकलता है। मैं कौन सा तुम